فاضل بریلوی فرماتے ہیں تم یہ سمجھتے ہو کہ صوفیہ اکرام پیران اعظام یہ ایک الگ شارٹ کٹ راستے سے اللہ تک پہنچا دیں گے. آج کے زمانے میں بہت سارے ایسے جعلی لوگ آئے ہوئے ہیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے ان کا تو بڑا آپریشن کیا اور فرمایا ہے کہ یہ جتنے بھی جعلی لوگ حضور کو چھوڑ کر کے تمہیں کسی اور راستے پر لے جانا چاہے سمجھ لینا کہ وہ شیطان ہے, زندیق ہے. ہو ہی نہیں سکتا کہ حضور کے طریقے کو چھوڑ کر کوئی اللہ کا ولی بن جائے. میں ایک بہت لگتی ہوئی بات بتا دیتا ہوں. آج میں دلی میں بیٹھا ہوں اور یہاں پر ذکر کرنا میں بہتر سمجھتا ہوں. ہندوستان میں حضور پاک کی حدیثوں کی اشاعت کرنے والے سب سے بڑے امام سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی, جن سے سب کی سند چلتی ہے, سب کی سندات چلتی ہے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی, ان کے ساتھ کیا ہوا تھا میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ مدینے سے چل کر آئے تھے ہندوستان اور ان کا حال یہ تھا کہ مدینے میں ایسے رہتے تھے کہ روزانہ حضور کی بارگاہ میں حاضری, اور جب حاضری دیتے تو اس وقت تک ہٹتے نہیں جب تک میرے مصطفیٰ کی زیارت نہیں کرتے. سبحان اللہ, ہر دن رات کو. اور آپ کو حکم ہوا خواب میں کہ عبدالحق تم ہند چلے جاؤ اور حدیث کی اشاعت کرو. حضور کے فرمان پر ہندوستان آئے, لیکن حضور سے ایک عہد کر کے آئے تھے کہ آقا جاؤں گا, وہاں جاؤں گا, لیکن میری خواہش یہ ہے کہ ہندوستان میں بھی رہوں گا تو آپ اپنی زیارت روز کرائیں گے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, واہ واہ. آپ اپنی زیارت روز کرائیں گے. شیخ عبدالحق یہاں آئے, دلی میں رہتے تھے. اب سنو, آپ علم حدیث کی اشاعت کر رہے تھے, شاگردوں کی کثرت ہو گئی. ایک وقت ایسا آیا کہ آپ ایک جنگل سے گزر رہے تھے, بیچ راستے میں دیکھا کہ ایک خانقاہ بنی ہوئی ہے. خانقاہ اگر اس کو کوئی بدنام کرتا ہے تو اس کو صحیح معنوں میں تعریف کرنا بھی ہمارا حق ہے کہ اصل خانقاہ کیا ہے, اور خانقاہ نہیں تو پھر خامخواہ ہے. شیخ عبدالحق فرماتے ہیں میں نے ایک خامخواہ کو دیکھا, خانقاہ نہیں. یا سمجھ لیجئے خانقاہ تھی, وہاں پر ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے, اللہ والے تھے, وہ صحیح تھے, ان کے مریدین کا حلقہ تھا, اور اتنے با کمال بزرگ کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں جیسے ہی ان کی خانقاہ میں گیا, مریدین وہاں پر مچل رہے تھے, وجد میں تھے, اور جب میں بیٹھا تو انہوں نے میرے گھر کے حالات سنا دیے, میرے گھر کے حالات سنا دیے. شربت والے بعد میں بانٹ لیں, آپ کو بھی سننا ہے یا نہیں ہے؟ ہاں, توجہ چاہتا ہوں. ہم یہاں پر محبوب الہی کا شربت پینے آئے ہیں, تھوڑی دیر وہ شربت پی لیں گے. بے شک بے شک. اگر آپ کو یہ شربت چاہیے تو سنیں, وہ شربت چاہیے تو میں بند کرتا ہوں. وہ تھوڑی دیر حلق تمہارا ترک کرے گا, لیکن یہ جو شربت پیو گے انشاءاللہ قبر بھی روشن کرے گا انشاءاللہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. توجہ, میں عرض یہ کر رہا تھا, شیخ عبدالحق محدث دہلوی اس خانقاہ میں گئے, پیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں, اور مریدین کا حلقہ ہے, اور وہاں پر اللہ رب العزت کا ذکر بھی ہو رہا ہے. لیکن سنیے, شیخ عبدالحق کہتے ہیں کہ میں جیسے ہی بیٹھا میرے گھر کے حالات بھی پیر صاحب نے سنا دیے. شیخ عبدالحق تمہارے گھر میں کیا کیا چلتا ہے, اب بتاؤ تمہارے دل کے حالات اگر کوئی پڑھ کے سنائے تو کتنا پہنچا ہوا ہوگا, کتنا پہنچا ہوا ہوگا. اب اس کے بعد شیخ عبدالحق محدث دہلوی دل سے عقیدت مند ہو گئے, لیکن تھوڑی دیر کے بعد شیخ عبدالحق فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ وہ پیر صاحب کے بغل میں ایک مٹی کا مٹکا تھا اور اس میں شراب بھری ہوئی تھی, اور مٹکے سے انڈیل انڈیل کر کے پیالوں میں مریدوں کو شراب پلائی جا رہی تھی. کون سی شراب؟ یہ تصوف کی شراب نہیں, حقیقی یا تاریخ کی شراب جس سے نشہ آتا ہے. شراب سب پی رہے تھے, لیکن اس کو کہہ رہے تھے یہ جام معرفت ہے. سب پی رہے تھے, معرفت, بڑی بدبو آ رہی تھی لیکن پی رہے تھے سب. اس بزرگ نے مٹکے میں سے ایک پیالے میں شراب انڈیل کر کے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کو بھی دیا, کہا کہ آپ بھی پی لو.
तवज्जो चाहता हूं, असल खानका, असल मुर्शिद, असल पीर कौन होता है? वो बुजुर्ग थे, मुरीद पी भी रहे थे, और पहुंचे हुए बुजुर्ग जो दिलों के हालात जानते हैं, अब शराब पीने के लिए कह रहे हैं। तो शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी से कहा आप भी पी लो, कहा ये नहीं हो सकता, शराब हराम है शरीयत मुस्तफा में, मैं इसका एक कतरा भी नहीं चख सकता। आपने सख्ती दिखाई, मैं रसूल पाक की शरीयत का मुहाफिज हूं, मैं एक कतरा भी नहीं चख सकता। तो जानते पीर साहब ने क्या कहा? कहा अब्दुल हक पी लो, वरना रोजाना तुम हुजूर की बारगाह में जो हाजिरी देते हो बंद करा दूंगा। अल्लाह, रोजाना जो तुम हुजूर की बारगाह में हाजिरी देते हो बंद करा दूंगा। अब बताओ इससे बड़ी बात और क्या हो सकती? इम्तिहान की घड़ी है अजीजों, एक तरफ शराब है और एक तरफ पीर अपने हालात भी बता रहा है। और शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी का ये राज था, कोई नहीं जानता था, कोई नहीं जानता था कि वो रोजाना हुजूर की बारगाह में हाजिरी देते हैं। अब कशमकश में पड़ गए कि करूं तो क्या करूं, शराब पी लूं, हो सकता है ये शराब ना हो, लेकिन बदबू आ रही है, और एक तरफ हुजूर की हाजिरी के बारे में ये कह रहे हैं, इनको तो पता है। फिर इस कशमकश में रहे, कशमकश में रहे, फिर उसके बाद अचानक अपने हाथ झटक करके उठ गए, कहा मैं बाद में देख लूंगा, लेकिन अपने नबी की शरीयत से गद्दारी नहीं करूंगा। वाह 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 वाह, मैं गद्दारी नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे मुस्तफा ने जिसको हराम कहा वो कयामत तक के लिए हराम, बेशक बेशक, न तुम्हारे लिए हलाल न मेरे लिए हलाल। अब पता नहीं तुम क्या पिला रहे हो, ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं नहीं पीऊंगा। फिर पीर साहब ने गरज करके कहा जाओ मैं देख लेता हूं, फिर तुम्हारी हाजिरी मैं बंद करा के रहूंगा। इतनी सख्त बहस हुई। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी कहते हैं मैं इसी कशमकश में उठ करके चला आया, और आज के दिन का काम भी नहीं हुआ, शाम में मैं आया, और मेरे मामूल के मुताबिक रात को जब मैं मुराकबे में बैठता था और हुजूर की बारगाह की हाजिरी करता था, आज जब मैं मुराकबे में बैठा आंखें बंद किया, हुजूर की जालियों तक पहुंचा तो देखा कि वो पीर साहब खड़े हैं और कह रहे हैं कि तुझे नहीं जाने दूंगा, क्या बात है, वाह वाह, तुझे नहीं जाने दूंगा। अब बताओ मेरे अजीजों, शराब पियोगे या शरीयत छोड़ोगे, क्या करोगे? महबूब इलाही हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी का कैसा कड़ा इम्तिहान। कहा नहीं जाने दूंगा, जियारत होने नहीं दूंगा। थोड़ी देर तक शेख साहब कहते हैं मैं देखता रहा, उसके बाद फिर मैंने आंखें खोल दी। आज की रात बगैर जियारत के मैं सो गया। लेकिन एक आशिक के लिए अगर सबसे बड़ी तड़प की बात है तो नबी पाक की दूरी है, वो नबी पाक की दूरी है। तनम फरसूदा जा पाराज हिजरा या रसूल अल्लाह, दिलम पशमुर्दा आवाराज ऐसियां या रसूल अल्लाह। शेख साहब कहते हैं कि दूसरे दिन मैं कोई काम न कर सका, रात भर की इन्हीं तफक्कुरात में खोया रहा। फिर मैं सोचा रात का इंतजार करता हूं, कल वसवसा होगा, मेरा दिल हाजिर नहीं हुआ होगा। दूसरे दिन फिर आप मुराकबे में गए, और आज के दिन जब आंखें बंद किए तो हुजूर की जियारत की गरज से जैसे ही वो जालियों तक पहुंचे, फिर वो पीर साहब खड़े। कहा नहीं जाने दूंगा, तेरी जियारत होने नहीं दूंगा। आज भी नहीं हुई जियारत। तीसरे दिन शेख अब्दुल हक कहते हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है मामला, कि वापस जाऊं जंगल में पीर साहब से माफी मांग लूं, शराब पी लूं, या क्या करूं। आज के दिन दिल कहता है, दिल ये कहता है, शेख अब्दुल हक कहते हैं अब्दुल हक तू जो जियारत करता है, क्या वो तेरी अपनी नेकियों से करता है या अपनी ताकत से करता है? फिर आपके इश्क ने कहा कि नहीं अब्दुल हक, ना ये तेरी ताकत है ना ये तेरे आमाल है, बल्कि वो फजल करते हैं तो मैं जियारत करता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वो फजल करते हैं। लिहाजा आज ये शिकायत इनसे उनसे करने की बजाय बराए रात हुजूर से ही कर दी जाए। आका आप ही फैसला करें, अगर ये पीर सच्चा है तो तुम्हारी शरीयत क्या है, और अगर शरीयत सही है तो ये पीर कौन है। हजरत शेख उस दिन तीसरा दिन था, जलाल भरा हुआ था, रात का वक्त है,
जैसे ही मुराकबे का वक्त आया आपने सोच लिया आज बारगाह मुस्तफा में सब कुछ कह जाना है, गम की बिपता भी सुनाना है और ये हो रहे हादसात की खबर भी देनी है। अब जब मुराकबे में आए तो कुछ नहीं कहा, सीधे बारगाह मुस्तफा में पुकारने लगे, कहा अभी वो उम्मी फिदा का या रसूल अल्लाह, आप फैसल हैं, अल्लाह ने आपको हकम बनाया है, मेरे और उस बुजुर्ग के दरमियान फैसला करे, तुम्हारी शरीयत सच्ची है तो फिर ये पीर कौन है, और अगर ये पीर सच्चा है तो तुम्हारी शरीयत का ये हलाल और हराम का मसला क्या है। अभी शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रोते जा रहे थे, ये कजिया बारगाह रिसालत मुआब में रखे ही थे। अचानक कब्र रसूल से आवाज आई हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ से, ऐ अब्दुल हक तू इम्तिहान में कामयाब है, मेरी शरीयत सच्ची है, वो पीर झूठा है, उखरुज मिन्नी या कल्ब, ऐ कुत्ते हमारे दरबार से निकल जा। वो पीर वहीं खड़ा था, अभी तक पीर वही खड़ा था, हुजूर के दरबार से आवाज आई कुत्ते हमारे दरबार से निकल जा। हजरत शेख साहब कहते हैं वो अचानक पीर वहां से भागा, जालियों का पर्दा हटा और रूए आफताब हमें नजर आया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कई दिनों के बाद हजरत शेख कहते हैं कि अब दिल को करार आया, सुकून मिला, मैंने नबी पाक की शरीयत को छोड़ा नहीं। आजमाइशें हो गई, इम्तिहानात हो गए और मुस्तफा ने मुझे अपना चेहरा दिखाई दिया। अब शेख साहब कहते हैं दूसरे दिन जब मैं उठा तो खरामा पूरे घर में खुशबुओं से मेरा महक रहा था, हुजूर पाक की जियारत की खुशी थी। मैंने सोचा अब पीर साहब की खबर भी ले लेते हैं, अब जाएंगे पीर साहब की खबर भी ले लेते हैं जो मुझे शराब पिला रहे थे और शराब पिला करके नशेड़ी बनाना चाह रहे थे। गए अपने दो शागिर्दों के साथ। शेख साहब कहते हैं मैं फौरन उस पीर साहब को देखना चाहता था, आज भी शराब पिलाएगा या कुछ और पिलाएगा। गए वहां जाकर के जंगल के दरमियान पहुंचे तो वो खानकाह जो चंद दिनों पहले जहां से गुजर रौनकें मुरीदीन का जमघटा, आज देख रहे खानकाह उजड़ी हुई है, उसके खीमे निकले हुए हैं और मुरीदीन कपड़े फाड़े बैठे हुए हैं। आप जाकर के देखते हैं, कहा ये क्या हशर है तुम्हारा, ये सब क्या हुआ है, पीर साहब कहां है। मुरीदीन कहते हैं गजब हो गया। कल रात हम अपने पीर के साथ बैठे थे, अचानक एक आवाज आई निकल जा कुत्ते, हमारा पीर कुत्ता बन गया और इसी खानकाह से निकलकर भाग गया। तब शेख अब्दुल हक ने फरमाया, ऐ लोगों तुम जिसको पीर समझ रहे थे हकीकत में वो इब्लीसे लईन था, वो जंदीक इब्लीसे लईन था। इब्लीस इन लिबासों में आता है तुम्हारा ईमान खरीदने के लिए, तुम्हारे ईमान को डाका डालने के लिए, नबी पाक की शरीयत से दूर करने के लिए। वो कभी पीर का लिबास, कभी मौलवी का लिबास, कभी आलिम का लिबास, कभी मुल्ला का लिबास, ये सब लिबासों में आता है। लेकिन तुम्हारी जिम्मेदारी ये है, हजार लिबास में आए फर्क नहीं पड़ता, जो आएगा उसे परखेंगे हम तो कदमे मुस्तफा पर परखेंगे। अगर नबी की शरीयत पर कायम है तो हमारे सरों का ताज है, और नबी पाक के कदम से हटा है तो चाहे जितना बुलंदा मामा रखता है हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं। इसीलिए हम कहते हैं नबी से हो जो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे। हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है, नबी से हो जो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पिदर मादर बिरादर जान और माल उन पर फिदा कर दे।